فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے بچو پلی کے علما کالونی میں دیوار گرنے کے واقعے کے بعد چوکسی اختیار کر لی ہے۔ کمشنر GHMC رونالڈ روز نے ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کو حیدرآباد میں خستہ حال مکانات کا سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ رونالڈ روز نے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بارش کے دوران کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خستہ حال عمارتوں اور سیلارز کی نشاندہی کریں جو قواعد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ رونالڈ روز اس ٹاؤن پلاننگ حکام کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ خستہ حال عمارتوں کی مکمل رپورٹ بشمول سرکلز کے اندر حادثات کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات اس ماہ کی 18 تاریخ تک فراہم کریں۔ BRS قائدین کے بار بار الزام کہ پارلیمنٹ انتخابات کے بعد ریونت ریڈی کچھ MLAs کو ساتھ لے کر BJP میں چلے جائیں گے۔ ان کی وضاحت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ میری 100 دنوں کی بہترین کارکردگی کو دیکھنے کے بعد KCR کے پاس مجھ پر الزام لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میری امکانی طور پر BJP میں شمولیت کا شوشہ چھوڑا گیا۔ میں نے BJP میں اس وقت شمولیت اختیار نہیں کی جب پارٹی کافی مضبوط تھی۔ ایک تیلگو TV چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا جب میں نے تیلگو دیشم پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی، تیلگو دیشم پارٹی NDA اتحاد کا حصہ تھی۔ اگر میں چاہتا تو چندر بابو نائیڈو کی مدد سے مرکز میں اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کو ترجیح دی، محنت کی، مقام بنایا۔ آج میں چیف منسٹر ہوں، ایسے میں مجھے کیا ضرورت ان پڑھ کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر BJP میں شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بہتان تراشی تلنگانہ کی توہین ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے میرے خلاف شکایت کی گئی، دہلی پولیس کو روانہ کیا گیا، چیف منسٹر کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا جا رہا۔ یہ تلنگانہ کی خود مختاری پر حملہ ہے، یہ ریونت ریڈی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے شکایت کی گئی، چیف منسٹر کو نوٹس دی گئی۔ اب 200 سے زیادہ دہلی پولیس کے جوان تلنگانہ کے تمام اضلاع میں جا کر رات کے وقت سرکاری نظام پر حملہ کر رہے، مجھ سے پوچھ رہے کہ میں دہلی آؤں گا یا نہیں، اور میں نے واضح کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد اور اسپیشل سیکریٹری برائے اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ تبصرہ اقبال نے حج ہاؤس نامپلی سے جھنڈی دکھا کر عازمین حج کے پہلے قافلے کو روانہ کیا۔ پہلے قافلے میں جملہ 285 عازمین حج شمس آباد ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے، تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس سے عازمین روانہ ہوئے۔ عازمین حج کو دوست احباب رشتہ داروں نے الوداع کیا۔ قبل ازیں مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے کہا کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ انہوں نے عازمین حج کو تلقین کی کہ وہ حج کے دوران عبادتوں میں مصروف رہیں، انہیں فضول باتوں سے احتراز کرنا چاہیے، ایسے لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ تلنگانہ کے عازمین حج مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی حاضری سے مشرف ہو کر حج کی سعادت پائیں گے۔ اسپیشل سیکریٹری برائے اقلیتی بہبود تبصرہ اقبال نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اور مرکزی حکومت کی جانب سے عازمین حج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے 200 عازمین حج کی خدمت کے لیے ایک خادم الحجاج کا تقرر کیا گیا۔ اس سے قبل 300 عازمین کی خدمت کے لیے ایک خادم الحجاج کا تقرر کیا گیا۔ ریاستی حج کمیٹی کی نمائندگی پر مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔
शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए आवाम को धोखा देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रीकांताचारी की वालिदा जिन्होंने तेलंगाना रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद बात की। उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने उनका कांग्रेस में खंडवा के साथ इस्तकबाल किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की रियासत के लिए श्रीकांताचारी की हतमी कुर्बानी का एतराफ किया और कहा कि शंकरम्मा ने पहले तवील अरसे तक बीआरएस के साथ काम किया था, हत्या कि वो हुजूर नगर से 2018 के असेंबली इंतखाबात में भी उनके खिलाफ लड़ी थी। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके दरमियान कभी कोई जाती दुश्मनी नहीं रही। भैंसा मंडल के मौजे मिर्जापुर में मधुल हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिक रुकन असेंबली भोसले नारायण राव पटेल ने कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम जोगन्ना को कामयाब बनाने की अपील की और रोजगार गारंटी स्कीम पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठंडे पानी और नाश्ते का इंतजाम किया। बादजा कांग्रेस रियासती हुकूमत के 6 गारंटियों पर तफसील से वजाहत की। इस प्रोग्राम में साबिक सरपंच विनोद रामचंद्र रेड्डी, शंकर चंद्रे, सुदर्शन रेड्डी, ओम प्रकाश लड्डा, साबिका कैप्टन सरपंच रमेश और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में 8 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई है। ये रकम मुनासिब दस्तावेजात के बगैर मुंतकिल की जा रही थी। ये रकम जिले कृष्णा के गरेका पाडू इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान जब्त की गई। बताया गया है कि जो तेलंगाना के जिले मेदक से आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर को पाइप के लोड के साथ जाने वाली लॉरी में बनाए गए खुफिया कैबिन में छुपाकर मुंतकिल की जा रही थी। ताहम एक इतला पर गरेका पाडू में गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये रकम जब्त की गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। తనిఖీ చేయడం జరిగింది। తనిఖీ చేయగా AP03 TA4666 అనేటటువంటి పైపులు కలిగినటువంటి లారీలో ఏదైతే క్యాబిన్ ఉందో ఆ క్యాబిన్ వెనక ఖాళీ గ్యాప్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇంత లారీ తోటి వచ్చింది కాకుండా సపరేట్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి క్యాబిన్లో అక్కడ బాగా ప్లేస్ కలిగి ఉంది। ఆ ప్లేస్లో మా వాళ్ళకి ఆ క్యాబిన్ ఉండేటటువంటి డిస్టెన్స్ని బట్టి ఆ దూరాన్ని బట్టి వాళ్ళు అంచనా వేసి దాంట్లో ఎక్కి చూడడం జరిగింది। చూడడం జరిగితే దాంట్లో 5 కవర్లు కలిగినటువంటి పెద్ద బ్యాగ్స్ అంటే అట్టపెట్టెల్లో कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने इल्जाम आयद किया कि हासन के एमपी प्रज्वल रेवना से मुतल्लिक फहश वीडियोस को गश्त करवाने के पीछे जेडीएस लीडर HD कुमार स्वामी का हाथ है। उन्होंने उन्हें ब्लैकमेलिंग का बादशाह और कहानी का मरकजी किरदार, हिदायतकार और फिल्मसाज करार दिया। शिव कुमार जो कांग्रेस के रियासती सदर भी हैं, कुमार स्वामी के उन्हें शिव कुमार काबीना से बरतरफ करने के मुतालबे और उन्हें मुबैना सेक्स वीडियोस की गश्त के असल साजिशी करार देने पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। कुमारस्वामी के भतीजे 33 साला जेडीएस एमपी जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना कर रहे इस स्कैंडल ने सियासी तूफान पैदा कर दिया है और हुक्मरान कांग्रेस और बीजेपी जेडीएस इत्तेहाद के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। जहां कांग्रेस ने केस की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। एनडीए की हलीफ जमातें बीजेपी और जेडीएस ने ये केस सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा किया। शिव कुमार ने तंज़िया अंदाज में कहा कि कुमारस्वामी पेन ड्राइव सेक्स वीडियो क्लिप्स पर मुश्तमिल मामले से पूरी तरह वाकिफ हैं। एक वकील देवरा जय गौड़ा और दीगर ये बात कर रहे हैं कि कुमारस्वामी मेरा इस्तीफा चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो कालीगा क़यादत के लिए मुसाबिकत है, मुझे इस्तीफा देने दें जैसा कि वो चाहते हैं। यहाँ सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को एक के बाद दीगर सियासी तौर पर ख़त्म करना उनका काम है। वो ब्लैकमेलिंग के राजा हैं, वो ओहदेदारों, सियासतदानों सबको धमका रहे।
कांग्रेस हुकूमत को घेरने झूठे प्रोपेगेंडे पर रियासती बीजेपी कायदीन पर तंज करते हुए चीफ मिनिस्टर ने उनसे एक सख्त सवाल किया। कहा, आप हमारे हाथों में छड़ी देकर बार बार खुद को क्यों पिटवा रहे हैं। मुस्लिम रहनुमा नवाज को बेंगलुरु रूरल जिले के होसकोटी में उवेमो केशवरश्रम स्वामी मंदिर की ब्रह्मोत्सवम कमेटी का रुकन मुकर्रर करने पर तनकीद के जवाब में रियासती बीजेपी कायदीन आर अशोक, बी वाई विजेंद्र और दीगर को आड़े हाथों लेते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने निशानदेही की कि बीजेपी हुकूमत ने इसी ब्रह्मोत्सव कमेटी में 2020 और 2022 में मुस्लिम फिरके के रहनुमाओं का तकर्रुर किया था। उन्होंने कहा है कि आप ये क्यों भूल गए कि आपकी अपनी हुकूमतों ने 2020 और 2022 में मंदिर की ब्रह्मोत्सव कमेटी में ऐसा किया था। इससे बीजेपी कायदीन का तासुब और फर्जी हिंदुत्व इफ्तिखार बेनकाब होता है। सिद्धरामैया ने बीजेपी कायदीन से कहा है कि होसकोटी और ओवेमो केशवर स्वामी मंदिर तमाम मज़ाहिब के साथ यकसा सलूक और एहतराम के लिए जाना जाता है। यह मंदिर तमाम मजहबी प्रोग्राम्स में तमाम मजहबी तबकात के अफराद को मदऊ करने के लिए शोहरत रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 साल पहले की कांग्रेस की मरकजी हुकूमत के गुनाहों को कोई नहीं भूल सकता। हर चंद दिन बाद हजारों करोड़ों रुपए का एक घोटाला सामने आता था। मुल्क के बड़े शहरों में बम धमाके होते थे। इस मर्तबा इंडिया इत्तेहाद 5 साल में 5 वज़ीर आज़म का फॉर्मूला लेकर आया। ये तस्वीर कीजिए कि अगर इनको इख्तिदार मिल गया तो क्या होगा। अगर हर साल एक नया वज़ीर आज़म आया तो मुल्क का क्या बेहतर होगा। एक आर तेलंगाना को लूटता रहा और दूसरा दिल्ली में वसूल करता रहा। मोदी ने कहा कि आज अवाम के सामने विकसित हिंदुस्तान और विकसित तेलंगाना का ख्वाब है। दुनिया में हर जगह अदम इस्तेहकाम, बदआमनी और बहरान है। ऐसी सूरत हाल में क्या मुल्क की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है। इसीलिए मुल्क कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी ने कहा, तीसरे मरहले के इंतखाबात के बाद 2 चीजें वाज़ेह हो गई। पहली, अवाम एनडीए के विजय रथ को तेज रफ्तारी से आगे ले जा रही। दूसरा, कांग्रेस मुअद्दिब अदसे से अपनी निशस्तों को ढूंढ रही। मोदी ने कहा, आवाम के जोश व खरोश को देखकर वो एक और बात कह सकते हैं कि चौथे मरहले में कांग्रेस को अपनी सीटें तलाश करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा और कहा कि क्या जिल्द की रंगत पर मुल्क के अवाम की सलाहियतों का फैसला होगा। शहजादा को ये हक किसने दिया। जो लोग आइन को सर पर रख कर नाच रहे वो अपनी जिल्द की रंगत की बुनियाद पर मेरे हमवतनों की तौहीन कर रहे। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी मुर्मू काफी बेहतर शबी की हामिल हैं और आदिवासी खानदान की बेटी हैं, तो फिर कांग्रेस ने उन्हें हराने की इतनी कोशिश क्यों की। लेकिन आज मुझे इसकी वजह मालूम हुई। अमेरिका में एक चचा हैं जो शहजादे के फलसफी रहनुमा हैं और क्रिकेट में थर्ड एम्पायर की तरह ये शहजादा थर्ड एम्पायर से मशवरा लेता है। इस फलसफियाना चचा ने कहा, जिनकी जिल्द काली होती है वो अफ्रीका से हैं। इसका मतलब ये कि आप जिल्द के रंग की वजह से मुल्क के अवाम बेइज्जती कर रहे। ఇవ్వండి। ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని తమ నెత్తిన పెట్టుకుని తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు చర్మం ఆధారంగా వ్యక్తుల గొప్ప హెచ్చు తగ్గులని నిర్ధారించడం సబబా జవాబివ్వండి। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।
किफ़ायती एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 80 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी। इसकी कई परवाजों में ताख़िर हुई क्योंकि अरकान अमला ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन में मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ बतौर एहतजाज रुखसत ले ली है। ज़राए ने ये बात बताई। एयरलाइन ने AIX कनेक्ट साबिक़ एयर एशिया इंडिया को खुद में ज़म करने के अमल से गुजर रही है। उसे गरमाई शेड्यूल में जो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, रोजाना 360 परवाजें चलानी होती हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस तर्जुमान ने बताया कि एयरलाइन अरकान अमला से बातचीत कर रही। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और शुमाली कश्मीर बारामूला निशस्त से पार्टी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम को मालूम है कि मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ जहर उगलने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम इस बात से अच्छी तरह बाखबर हो गए हैं कि कश्मीर में पिछले दरवाजे से कमल का फूल खिलाने की कोशिशें कौन कर रहा। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार कुपवाड़ा में चुनावी रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा पार्लिमानी इलेक्शन में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, अवाम को पता चल गया कि यहाँ कौन से लोग फ़िरका परस्तों की मदद के लिए सियासी मैदान में हैं। अवाम को भी मालूम पड़ गया कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर और उनकी मदद से इलेक्शन लड़ने वाले कौन हैं, और अवाम को ये भी मालूम है कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ के नफरत फैलाने वाले कौन हैं और मुसलमानों को बदनाम करने और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले कौन हैं। सऊदी अरब से मुक़ीम गैर मुल्कियों के तरसील ज़र में इजाफा खारिजी बाशिंदों के बेहतर मौशी हालात का पता देता है। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि मार्च 2024 के दौरान मुमलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों की जानिब से तरसीलात ज़र में 4% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस मार्च में 11.5 अरब रियाल के मुकाबले में इस साल तरसीलात में ज़र में 11.9 अरब रियाल तक पहुँच गए हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र में फरवरी 2024 के मुकाबले में मार्च के दौरान 28% तकरीबन 2.6 अरब रियाल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अलावा से सऊदी शहरियों की बैरून मुल्क तरसीलात गुज़िश्ता साल मार्च 2023 के मुकाबले में रवां बरस मार्च के दौरान 9% कम 5.12 अरब रियाल रही है। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट का हज ऑपरेशन से मुतल्लिक़ अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हज सीज़न की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हज सीज़न 2024 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज़मीन हज बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्ते से मुमलिकत पहुंचेंगे। सऊदी सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी के मुताबिक इस साल मुमलिकत के 6 एयरपोर्ट्स पर आज़मीन के इस्तक़बाल की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि आज़मीन हज के लिए जिद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहजादा अब्दुल मोहसिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यनबा ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाज का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम को मुख्तस किया गया। सऊदी रेलवे सर के मुताबिक 9 ट्रेन स्टेशन में, जिनमें मनी और मुज़दलिफ़ा और अरफात शामिल हैं, हुजाज की नकल व हरकत को आसान बनाया गया है। तकरीबन 2000 ट्रिप्स के लिए 17 ट्रेनों को तैयार किया जा चुका है। हरमैन ट्रेन 5 स्टेशनों के जरिए हज सीजन में 3800 से ज्यादा ट्रिप्स के लिए तैयार है। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि वो गजा के रफा पर अपनी ज़मीनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। दरअसल शुरू होने वाले हमले के बाद से 30 के करीब शहादतों की इतला है। फौज के एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों में 30 इंतहा पसंद हैं, जबकि गजा के सेहत के हुकाम ने तकरीबन 35 शहादतों की इतला दी है, जिनमें एक 4 माह का बच्चा भी शामिल है। फौज ने कहा है कि एक टैंक डिवीजन और एक बख्तरबंद ब्रिगेड मुश्तकी रफा में जमीन पर काम कर रहे, जबकि हमला आवर ड्रोन फिजा से हमले कर रहे। फौज ने बताया कि उन्होंने इलाके में तकरीबन 100 अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा और मुश्तबा इमारतें शामिल थी, जहां से हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर फायरिंग की थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.